اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت ہفتم کی اختتامی میعاد کے سبق نمبر 6 میں مضمون اردو کے سبق ہوائی جہاز کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ تدریسی مقاصد۔ سبق ہوائی جہاز کی تدریس کے بعد بچے اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں، نئے الفاظ سیکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کر سکیں، پیراگراف کو سادہ اور آسان زبان میں بیان کر سکیں، قواعد کی روح سے صفت ذاتی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ سبق کے لیے مندرجہ ذیل اشیاء درکار ہیں: پینسل، ربڑ، ہائی لائٹر، نیلا پین، نیلا مارکر، کتاب کاروان اردو، ونٹر پیک، اردو کی کاپی۔ مشقی سوالات شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق ہوائی جہاز کی پڑھائی کا مختصر اعادہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ بچوں گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے ہوا میں اڑنے کی ناممکن خواہش کو رائٹ برادران نے عزم و ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی کاوشوں سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے بعد انسان نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہوائی جہاز کی بنیادی اور جدید اقسام کے بارے میں آگاہی حاصل کی، اور آج بھی انسان ہوائی سفر کو جدید سے جدید تر بنانے میں سرگرداں ہے۔ کتاب کاروان اردو صفحہ نمبر 111 کھولیں۔ اب ہم سبق ہوائی جہاز کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے انسانوں نے اپنا اڑنے کا شوق پورا کرنے کے لیے کیا کیا تجربات کیے؟ سوال نمبر 2، جہاز کی ایجاد میں رائٹ برادران کی کوششیں بیان کیجیے۔ سوال نمبر 3، ہوائی جہاز کی 2 بنیادی اقسام تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 4، جدید ہوائی جہازوں کی اقسام تحریر کیجیے۔ سوالات کے جوابات کے لیے ونٹر پیک صفحہ نمبر 22 کھولیں۔ سوال نمبر 1، ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے انسانوں نے اپنے اڑنے کا شوق پورا کرنے کے لیے کیا کیا تجربات کیے؟ جواب، ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے انسانوں نے اپنے اڑنے کا شوق پورا کرنے کے لیے اڑنے کے آلات ایجاد کیے۔ 400 قبل مسیح چینیوں نے پتنگ ایجاد کی، پرندوں کے پروں کو جوڑ کر بڑے بڑے پر بنائے، لکڑی کے پتلے تختے جوڑ کر پروں کی شکل بنائی، اور 1799 میں جارج کیلی پہلا گلائیڈر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بچوں انسان کو ہوا میں اڑنے کا شوق شروع سے ہی رہا ہے، اور اسی اڑنے کی کوشش میں انسانوں نے پہلے پتنگیں بنائیں، اس کے بعد پر بنائے، پھر غبارے بھی بنائے، لیکن ان سبھی کوششوں میں وہ ناکام رہے، اور آخرکار 1799 میں ایک سائنسدان جس کا نام تھا جارج کیلی، اس نے ایک چھوٹا سا طیارہ بنایا، لیکن یہ طیارہ بھی کچھ سیکنڈ تک ہی ہوا میں اڑ سکتا تھا۔ سوال نمبر 2، جہاز کی ایجاد میں رائٹ برادران کی کوششیں بیان کیجیے۔ جواب، رائٹ برادران آرول رائٹ اور ولبر رائٹ ایک مدت تک ہوائی جہاز بنانے کے لیے تجربات کرتے رہے۔ 17 دسمبر 1903 کو انہوں نے ہوابازی کی تاریخ کا حیران کن کارنامہ انجام دیا اور نارتھ کیرولینا کے ساحل پر 6 میٹر بلند ہو کر 12 سیکنڈ میں 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ انہوں نے 3 کامیاب تجربات کیے، جن میں سے طویل تجربہ 59 سیکنڈ میں 260 میٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ رائٹ برادران یہ دونوں بھائی تھے، آرول رائٹ اور ولبر رائٹ، اور ان دونوں کو ہوا میں اڑنے کا بہت شوق تھا، جس کے لیے انہوں نے بہت سے تجربات کیے، اور آخرکار 1903 کو وہ تاریخی لمحہ آ گیا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ بچوں یہ 17 دسمبر کی بات ہے
जब ऑरवेल 12 सेकंड से ज्यादा देर तक फिजा में रहा और इसके जहाज ने 37 मीटर का फासला तय किया, और इसी तरह विल्बर 59 सेकंड फिजा में रहा और 260 मीटर का फासला तय किया। इस रोज दोनों भाइयों ने 3 मजीद उड़ानें भरी। नॉर्थ कैरोलिना के मकाम पर इन दोनों भाइयों के अलावा और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इस नामुमकिन तजुर्बे को मुमकिन बनते देखा, और इस तरह फिजा में उड़ने का तजुर्बा कामयाब हो गया। सवाल नंबर 3, हवाई जहाज की 2 बुनियादी इकसाम तहरीर करें। हवाई जहाज की 2 बुनियादी इकसाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 हवा से हल्के, नंबर 2 हवा से भारी। हवा से हल्के जहाजों में ब्लेम्स यानी झपकना और बैलून एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इन पर बड़े बड़े थैले नस्ब किए जाते हैं जिनमें हवा से हल्की गैसें जैसे गर्म हवा, हीलियम या हाइड्रोजन भरी जाती हैं, जिनकी कसाफत हवा की कसाफत से कम होती है और वो हवा में तैरने में मदद देती है। हीलियम, हाइड्रोजन ये वो गैसें हैं जिनका हुजम हवा के हुजम से कम होता है, और इसी वजह से ये वाले जहाज हवा में उड़ सकते हैं। हवा से भारी जहाज में ऐसे इंजन नस्ब होते हैं, यानी ऐसे इंजन लगे होते हैं जो हवा को नीचे की तरफ जोर से धकेलते हैं, जिसके रद्दे अमल में जहाज ऊपर की तरफ हरकत करता है, जिनकी मिसाल मुसाफिर बर्दाश्त और जंगी जहाज हैं। हवा से भारी जहाजों में बड़े इंजन लगे होते हैं जो हवा को नीचे की तरफ धकेलते हैं, और इसके जवाब में जहाज ऊपर की तरफ उड़ता है। और इनकी मिसालों में मुसाफिर बर्दार तैयारे यानी मुसाफिरों को लाने और ले जाने वाले तैयारी, और जंगी जहाज जंग के दिनों में इस्तेमाल होने वाले जहाज शामिल हैं। सवाल नंबर 4, जदीद हवाई जहाजों की इकसाम तहरीर करें। जवाब, जदीद हवाई जहाजों को 5 इकसाम में तकसीम किया जाता है। तिजारती सफरी जहाज, वो बड़े जहाज जो मुसाफिरों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फौजी तैयारे जमीन या हवा में मौजूद दुश्मनों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों, ये जहाज अक्सर जंग के दिनों में इस्तेमाल होते हैं और फौजियों को हथियार या फौजी इमदाद पहुंचाने के लिए काम आते हैं। हवाबाजी के अमूमी तैयारे, ये छोटे तैयारे तलबा को हवाबाजी सिखाने, बुलंदी पर तस्वीरें लेने और दीगर तफरीही और सफरी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। समंदरी तैयारे पानी पर ही उड़ते और पानी पर ही लैंड होते हैं, इन्हें आबी तैयारे भी कहा जाता है। ये वो तैयारे होते हैं जो समंदरों में खड़े बड़े बड़े बहरी जहाजों पर से ही परवाज करते हैं और इन्हीं पर ही उतरते हैं, इसी वजह से इन्हें आबी तैयारे कहते हैं। खुसूसी मकासद के तैयारे अमूमन फिजा में करतब दिखाने या फसलों पर केमिकल्स की स्प्रे वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए आप सबक में पढ़ाए गए पैराग्राफ की सिलीफ करते हैं। बच्चों, किसी भी पैराग्राफ की सिलीफ उर्दू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि सिलीफ उर्दू कहते किसे हैं। बुनियादी तौर पर किसी नसर पारे को आसान और सादा अल्फाज में बयान करने को सिलीफ उर्दू कहते हैं, और सिलीफ उर्दू करने के लिए मंदरजा दिल नकाब को ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। सिलीफ उर्दू करने के लिए ये ज़रूरी है कि मुश्किल अल्फाज के मानी याद किए जाएं। पैराग्राफ में दिए गए फिक्रात को सादा और आसान अल्फाज में लिखा जाए। विंटर पैक सफ़ा नंबर 22 देखें। दिए गए पैराग्राफ की सिलीफ उर्दू करें। नीज़ खत कशीदा अल्फाज के मानी तहरीर करें। पहला, बाकायदा हवाई जहाज बनाने का कारनामा राइट बिरादरान ने अंजाम दिया। ऑरवेल राइट और विल्बर राइट, ये दोनों भाई एक मुद्दत तक हवाई जहाज बनाने के तजुर्बात करते रहे। लोग इनका मजाक उड़ाते
लेकिन ये अनथक मेहनत और अज़्म हिम्मत से इस बज़ाहिर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने में लगे रहे। 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने हवाबाजी की तारीख का हैरानकुन कारनामा अंजाम दिया और नॉर्थ कैरोलिना के साहिल पर अपने इजाद किए जहाज के जरिए हवा में 6 मीटर बुलंद होकर 12 सेकंड में 37 मीटर का फासला तय किया। बच्चों, सिलीट करने के लिए सबसे पहले दिए गए खत कशीदा अल्फाज के मानी याद करें। खत कशीदा अल्फाज के मानी: कारनामा, मुकम्मल करने का अमल, मुद्दत, अरसा, अनथक, बेहद, अज़्म हिम्मत, हौसला और बर्दाश्त, हैरानकुन, हैरतज़दा, साहिल, किनारा। सिलीस उर्दू। पहला बाकायदा हवाई जहाज बनाने का अमल राइट बिरादरान ने पूरा किया। ऑरवेल राइट और विल्बर राइट, ये दोनों भाई एक अरसे तक हवाई जहाज बनाने के कारनामे करते रहे। लोग इनका मजाक उड़ाते, लेकिन ये बेहद मेहनत और हौसले और बर्दाश्त से इस बज़ाहिर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने में लगे रहे और आखिरकार 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने हवाबाजी की तारीख का हैरतज़दा कारनामा अंजाम दिया और नॉर्थ कैरोलिना के किनारे पर अपने इजाद किए जहाज के जरिए हवा में 6 मीटर बुलंद होकर 12 सेकंड में 37 मीटर का फासला अबूर किया। अल्फाज जुमले। दिए गए अल्फाज के मानी अपने अल्फाज में लिखिए और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तकमील, मुकम्मल करना, इसका जुमला है: हर शख्स अपने मकासद की तकमील के लिए जद्दोजहद करता है। नामुकम्मल, इसका मानी है अधूरा। उमर ने अपने नामुकम्मल काम को मुकम्मल कर लिया। अनथक, बेहद, कायदे आज़म ने अलग वतन के हुसूल के लिए अनथक मेहनत की। हवाबाजी, हवा में उड़ना, अली हवाबाजी का शौकीन है। साइंसदान, साइंस के किसी शोबे का माहिर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक अजीम साइंसदान हैं। रद्द अमल, जवाबी अमल, पाकिस्तान ने दुश्मन की साजिशों पर भरपूर रद्द अमल जाहिर किया। बच्चों, अब कारवानी उर्दू सफा नंबर 112 खोलें। यहाँ हम सिफ्ते जाती के दर्जे पढ़ेंगे और सिफ्ते जाती के दर्जे करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें सिर्फ किसे कहते हैं। इस्म सिफ्त वो इस्म है जिससे किसी की अच्छी या बुरी हालत जाहिर की जाए, मसलन नेक लड़का, ऊंची दीवार वगैरह। और जिसकी अच्छी या बुरी हालत जाहिर की जाए इसे इसमें मौसूफ कहते हैं। जैसा कि इन मिसालों में आपने देखा है, नेक लड़का, हम कह सकते हैं असलम एक नेक लड़का है। नेक इसकी सिफ्त है, इसलिए नेक इसमें सिफ्त है और लड़का इसके बारे में बताया जा रहा है तो ये मौसूफ है। इसी तरह वो ऊंची दीवार है, ऊंची इसकी सिफ्त है और दीवार के बारे में बताया जा रहा है तो दीवार मौसूफ है। बच्चों, इस्म सिफ्त की दो इकसाम है, सिफ्ते जाती और सिफ्ते निस्बती। आज के सबक में हम सिफ्ते जाती के दर्जे मौजूए बहस लाएंगे, लेकिन सिफ्ते जाती के दर्जे करने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि सिफ्ते जाती किसे कहते हैं। जब कोई सिफ्त अपने मौसूफ में मुस्तकिल तौर पर पाई जाए तो उसे सिफ्ते जाती कहा जाता है। मसलन शरीर लड़का, नेक आदमी वगैरह, और इनमें शरीर और नेक सिफ्ते जाती हैं।
सिफ्त ज़ाती के 3 दर्जे हैं, तब्दील नफ्सी, तब्दील बाद, तब्दील कुल। तब्दील नफ्सी वो दर्जा सिफ्त जिसमें किसी चीज या शख्स की ज़ाती सिफ्त ज़ाहिर हो। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी दूसरे शख्स या चीज से मुकाबला किए बगैर किसी शख्स या चीज की ज़ाती सिफ्त बयान की जाए तो इसे तब्दील नफ्सी कहते हैं। मसलन नेक, बद, लायक, काबिल। जैसा कि जमील नेक आदमी है तो इसमें नेक तब्दील नफ्सी है। तब्दील बाद वो दर्जा सिफ्त जिसमें एक चीज या शख्स को दूसरे पर तरजीह दी जाए। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो एक जैसी चीजों का मुकाबला करके एक को दूसरी से घटाया या बढ़ाया जाता है। मसलन बहुत लायक, बहुत ज्यादा। जैसे जमील असगर से ज्यादा लायक है, यहाँ एक को दूसरे पर तरजीह दी गई है। तब्दील कुल जिसमें किसी चीज को उस जैसी तमाम दूसरी चीजों पर तरजीह दी जाए। तब्दील कुल में एक चीज को उसकी तमाम हमजिन्स चीजों से घटाकर या बढ़ाकर पेश किया जाता है। मसलन नहायत लायक, बहुत ही लायक, सबसे ज्यादा लायक। इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जमील सबसे ज्यादा लायक है। ये सिफ्त का तीसरा दर्जा है। सफ़ा नंबर 113 पर सिफ्त ज़ाती के दर्जों की मदद से गोशवारा मुकम्मल कीजिए। तफसील नफ्सी, नेक, नेकतर, नेकतरीन। सस्ता, बहुत सस्ता, सबसे सस्ता। आला, आलातर, आला तरीन। मेहनती, बहुत मेहनती, सबसे ज्यादा मेहनती। नफीस, नफीसतर, नफीस तरीन। हसीन, हसीनतर, हसीन तरीन। कीमती, बहुत कीमती, बहुत ज्यादा कीमती। काबिल, काबिलतर, काबिल तरीन। अब यहाँ पर सिफ्त के तीनों दर्जे बयान किए गए हैं। तफसील नफ्सी में चीज या किसी भी शख्स की ज़ाती सिफ्त जाहिर की गई है। तब्दील बास में एक शख्स या चीज को दूसरे पर तरजीह दी गई है। और तब्दील कुल में किसी भी चीज को उस जैसी दूसरी तमाम चीजों पर तरजीह दी गई है। उर्दू की कॉपी खोलें और पहले सफ़े पर सबक का इंडेक्स लिखिए। इसके बाद अगले सफ़े पर सबक का सबकी इशारा बनाइए। अगले सफ़े पर दिन, तारीख और आज का काम लिखें। इसके बाद सबक हवाई जहाज का उन्वान तहरीर करें। सवाल जवाब। विंटर पैक में पढ़ाए गए सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर तहरीर करें। सवाल नंबर 1, हवाई जहाज की इजाद से पहले इंसानों ने अपने उड़ने का शौक पूरा करने के लिए क्या क्या तजुर्बात किए। सवाल नंबर 2, जहाज की इजाद में राइट बिरादरान की कोशिशें बयान कीजिए। सवाल नंबर 3, हवाई जहाज की 2 बुनियादी इकसाम तहरीर करें। सवाल नंबर 4, जदीद हवाई जहाजों की इकसाम तहरीर करें। अगले सफ़े पर आज का काम लिखें और उन्वान सबक हवाई जहाज फिलीस उर्दू तहरीर करें। दिए गए पैराग्राफ की फिलीस उर्दू लिखें। नेज़ खत कशीदा अल्फाज के मानी तहरीर करें। विंटर पैक में करवाई गई फिलीस उर्दू अपनी कॉपी पर तहरीर कीजिए।
सबक में पढ़ाए गए अल्फाज के जुमले अपनी कॉपी पर तहरीर करें। आज का काम, सबक हवाई जहाज के सवालात के जवाबात और अल्फाज जुमले कॉपी पर लिखें और याद करें। सबक हवाई जहाज सफ़ा नंबर 111, सवाल नंबर 2 कॉपी पर तहरीर करें और याद करें। सबक हवाई जहाज कवायद सफ़ा नंबर 112 और 113 किताब कारवानी उर्दू पर हल करें। उम्मीद है कि आज के सबक से आपने मुफीद मालूमात हासिल की हैं जो आइंदा आने वाली जिंदगी में आपके लिए मौसर साबित होंगी। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।